चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे I श्रीगुरुदीनतारिणं am not getting anything. चैतन्य ईश्वरम्। हेलो, हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही? यस हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? और यस स्क्रीन भी दिख यस। हाँ 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 आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है। ओके ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक अब सबको दिख रहा है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम श्लोक कर रहे हैं, 23वां श्लोक, 23rd। प्लीज रिपीट कीजिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोचयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए और पर्पट? I can read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. Purpose. All kinds of weapons, swords, I am flames, not getting anything. My microphone is unmuted. My video is stopped. नमस्ते गुप्ता आंटी। गुप्ता आंटी इज देयर? बाकी सबको तो आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हमको तो आ रही है। Hello. हमको भी आ रही है। आई यस थिंक वहां प्रभु पे जी, कोई क्लियर आ रहा है। प्रॉब्लम, कुछ उनके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। Hello. मे बी मैं अलग से उनको Hello. मैसेज कर देता हूँ। Hello. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते, रीड करना। मैं उन आई विल कनेक्ट विद हर सेपरेटली। All kinds of weapons, swords, flames, weapons, rain weapons, tornado weapons, etc., are unable to kill the spirit soul. It appears that there were many kinds of weapons made of earth, water, air, ether, in addition to the modern weapons of fire. Even the nuclear weapons of the modern age are classified as fire weapons, but formerly there were other weapons made of all different types of material elements. Fire weapons were counteracted by water weapons, which are now known to modern science. Nor do modern scientists have knowledge of tornado weapons. Nonetheless, the soul can never be cut into pieces nor annihilated by any number of weapons, regardless of scientific devices. The Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently became covered by illusionary energy. Nor was it ever possible to cut the individual souls from the original Supreme Soul. Rather, the individual soul are eternally separate parts of the Supreme Soul. Because they are atomic individual souls, eternally Sanatana, they are prone to be covered by the illusionary energy, and thus they become separated from the association of the Supreme Lord. Just as the sparks of a fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished when out of the fire. In the Varda Purana, the living entities are described as separated parts and parcels of the Supreme. They are eternally so, according to the Bhagavad Gita also. So, even after being liberated from illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the Prabhuji, can you scroll up? From the teachings of the Lord to Arjuna. Arjuna became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. Hare Krishna.
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सोल की प्रॉपर्टीज जो हैं उसको एलैबोरेट कर रहे हैं कृष्णा। और कृष्णा क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए कृष्णा अर्जुन को ये बता रहे हैं कि आपको अपना धर्म निभाने के लिए ये समझना है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, और शरीर जो है उसका विनाश होता है, लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है। आत्मा को कोई भी तो यहाँ पे आप आत्मा के बारे में, आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा की प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं कि उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते, उसको जला नहीं सकते आप, उसको गीला नहीं कर सकते, उसको सुखा नहीं सकते, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि जो शस्त्र हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ शस्त्र ऐसे हैं जो हम आजकल की दुनिया में देखते हैं, यूज करते हैं, जिसको आग लगा के या टेम्परेचर इंक्रीज करके लोगों का सर्वनाश करने की कोशिश की जाती है, उसको फायर वेपन्स की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी वेपन्स हैं, जैसे वाटर वेपन हो गया, टोर्नाडो वेपन हो गया। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र थे पहले के टाइम में जो काउंटर एक्ट कर सकते थे फायर वेपन को, आग के साथ पानी या फिर कहीं पे तूफान ले आना। ये सारी चीज़ें पहले ये टेक्नोलॉजी उनको अवेलेबल थी। अभी हमारी करंट जो फोकस है वो सिर्फ इसी में, अभी नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बट अभी साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी नहीं हुई। तो ये पहले पैराग्राफ में बताया। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी फिर से मायावादी लोगों के बारे में बता रहे हैं जो ये सोचते हैं कि आत्मा जो है वो भ्रमण में से टूट के बनी है, या फिर जब आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा तो भ्रमण में विलीन हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं उसको यहाँ पे बताया गया कि वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत है। क्योंकि आत्मा जो है वो अविकारी है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि वो मर्ज हो जाए या कट हो जाए, क्योंकि कट नहीं हो सकती आत्मा। तो ये पॉइंट जो है इन पर्टिकुलर श्लोक में एलैबोरेट कर रहे हैं कृष्णा, और प्रभुपाद पर्पट में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आगे वराह पुराण का के अंदर को कोट करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। तो ये भगवत गीता में आगे भी एक्सप्लेन होगा 15 चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर में ये सब चीज़ें आएंगी, प्रॉपर श्लोक आएंगे। तो अर्जुन जो है वो भगवान की शरण में आके भगवान से सीख के पूर्ण ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन भगवान नहीं बन जाएंगे। कई लोग कहते हैं आत्मा जो है वो परमात्मा बन सकती है, या फिर कोई फर्क नहीं रहेगा, वो भ्रमण हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन ने भगवत गीता सीखी और अर्जुन फिर उसके बाद बन गया कि अब मैं कृष्ण ही हूँ या मैं भगवान हूँ। ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन जो है वो जीव है और कृष्णा जो है भगवान है, और दोनों में फर्क हमेशा था और हमेशा ही रहता है। हाँ, पूर्ण शुद्ध तरीके से अगर जीव भगवत गीता को एक्सेप्ट करके फॉलो करता है तो वो भगवान के साथ हो सकता है, लेकिन वो खुद भगवान नहीं होता। तो ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? कोई सवाल पूछना चाहेगा? ओके, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं अगले श्लोक में। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम, अच्छेद्यो अयम् अयाद्यो अयम् अक्लेद्यो शोष एव च, अक्लेद्यो अशोष एव च नित्य सर्वगतः स्थानुर, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलो यम सनातना। अचलोऽयं सनातनः।
कोई पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई अवेलेबल है? ओके, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। मैं पढ़ सकती हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। हूँ। This individual soul is unbreakable and insoluble, and can neither be burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. ओके, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं आगे फर्दर। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कैसे आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, कट नहीं हो सकती, जल नहीं सकती, उसको पानी डुबा नहीं सकता, उसको हवा जो है बहा के सुखा नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे भी वही चीज़, सिमिलर चीज़ बताई गई है आत्मा के बारे में, कि आत्मा कट भी नहीं कर सकते आप वेपन से, लेकिन वो ब्रेक हो भी नहीं सकती, और उसको कहीं आप इनसॉल्यूबल है, मतलब कि ऐसे नहीं कि कहीं पे अच्छे से घोल दो उसको। जो होता है ना, चीनी लेते हैं, घोल देते हैं उसको पानी में, तो ऐसे घुलेगी नहीं, वो सॉल्यूबल नहीं हो। और जल नहीं सकती और सूख नहीं सकती। वो हमेशा से थी, हमेशा रहती है, और वो चेंज भी नहीं होती, उसके अंदर विकार नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि आपके मूव करने से वो मूव हो जाएगी, इस शरीर में उसको उठा के कहीं और डाल दो, नहीं, वो इस तरीके से नहीं मूव होती, इमूवेबल है। और सनातन रूप से वो एक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा के अंदर अब बूढ़ी हो गई आत्मा या जवान हो गई आत्मा, ऐसे नहीं होती, वो सेम रहती है। उसमें समय का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब हम पर्पट पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू करोगे पर्पट? All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit's whole, and he remains the same atom eternally, without change. Theory of monism is difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead. But intelligent souls enter into spiritual planets to associate with the Supreme Personality of Godhead. The word Sarvagata, all-pervading, is significant because there is no doubt that living entities are all over God's creation. They live on land, in water, in air, within the earth, and even within fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable. We clearly stated here that the soul cannot be burned by fire. Therefore, there is no doubt that there are living entities also in the sun planet with suitable bodies to live there. If the sun globe is inhabited, the Sarvagata, living everywhere, becomes meaningless. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, फॉर शेयरिंग एंड रीडिंग। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई हैं। तो प्रभुपाद जी पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो आत्मा है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिफिकेशंस ये यहाँ पे दी गई हैं इन पर्टिकुलर श्लोकों। और हमने ऑलरेडी डिस्कस करी ये प्रॉपर्टीज, तो इसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करके बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि मोनिज्म, जैसे हमने पूरा पढ़ा था ना, मायावादी सोचते हैं कि पूरा एक, सब कुछ एक ही है, एक ही भ्रमण है, एक ही है आत्मा, और सब जीव जो है उसमें विलीन हो जाएंगे। तो ये थ्योरी यहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि आत्मा जो है वो इटर्नली द सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, कि वो वैसे के वैसे थी। तो वो किसी और में मिक्स हो जाए या उससे टूट जाए, ऐसा कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं। और वो इनसॉल्यूबल भी लिखा हुआ है।
तो इसलिए थ्योरी ऑफ मोनिज्म जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिफ्यूट हो रही है। रिफ्यूट होने का मतलब कि वो थ्योरी समझ सकते हैं हम कि गलत है। और प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस इस पर्टिकुलर श्लोक में लिखा है कि आत्मा जो है वो हर जगह है, हर जगह मतलब सर्वगता, हर जगह। तो कोई कह सकता है अच्छा अग्नि में भी है आत्मा। वेल आत्मा, अग्नि जो है आत्मा को जला नहीं सकती है। तो हम देखते हैं कि कई बारी कई एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर जहाँ पे हमारा शरीर नहीं रह सकता, वहाँ पे कई सारे जंतु रहते हैं। धरती के बिल्कुल आप देखोगे समुद्र के नीचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे आपको जैसे थर्मो एसिडोफिल्स और ऐसे तरीके के स्पीशीज होते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर उस हिसाब से आपको लेना पड़ता है। आत्मा उसी तरीके का शरीर लेती है जो उस पर्टिकुलर परिस्थिति को फेस कर सके। तो जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं कई बार सूर्य देव और ऐसे चंद्र देव और ऐसे बताया जाता है। तो ये बाकी प्लैनेट्स में भी ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं रह सकती, आत्मा रह सकती है, लेकिन वो शरीर जो है वो दूसरे तरीके का शरीर लेती है। और जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर या एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर शरीर के लिए नहीं होगी जो वो ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोई सवाल पूछना चाहेगा इसमें से, इस पर्टिकुलर श्लोक में से? किसी का कोई सवाल या कोई रिफ्लेक्शंस या कोई कमेंट करना चाहेगा आप लोगों को पढ़ प्रभु के? मेरे को कुछ बोलना हाँ है। जी, आप प्लीज एक्चुअली बताइए। एज अ वेरी यंग चाइल्ड हम लोग जब भी हमारे इधर वो भगवत गीता नहीं, नॉट भगवत गीता, रामायण दिखाते थे। तो जब भी राम जी वापस सीता जी वापस जाती है राम जी के पास, तो वो जो हम लोग बोलते हैं कि अग्नि परीक्षा से, मे बी दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट नो, लेकिन नहीं जब भी वो नहीं, कहते बोलिए हैं बोलिए। कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये अग्नि परीक्षा है, सीता जी दे रही है, क्यों देती हैं, एंड वो क्वेश्चन हमेशा लोगों को डिटर करता है अपने धर्म से, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि दिस इज अनफेयर अगेंस्ट विमेन। लेकिन उस टाइम जो भी हमने एपिसोड देखा था, व्हाट वाज सेड वाज कि राम को पता था कि मुझे रावण को खत्म करना है, तो दिस वाज जस्ट एन एक्सक्यूज। और इन दोनों की एक टीम प्लानिंग थी, राम और सीता जी की, कि सीता जी जाएंगी रावण के पास, लेकिन उसका सोल जो है वो अग्नि देवता के पास सेफ रहेगा। और वो जब वॉर खत्म हो जाता है और वापस आते हैं, तो वो उस अग्नि देवता से अपना सोल वापस लेता है। दैट्स व्हाई शी हैज टू कम थ्रू द फायर टू गेट बैक इनटू हर, टू गेट हर सोल बैक इनटू हर बॉडी। तो वो बिल्कुल सही। आपने जब अग्नि की बात निकाली तो मुझे, आई डोंट नो इफ इट रेफर्स टू एनीथिंग लाइक दैट, बट इट मे बी हेल्पफुल टू क्लैरिफाई, क्योंकि अभी किसी के पास वो रीजनिंग नहीं होता है, और सब लोग यही समझते हैं कि राम गलत है कि उसने सीता की अग्नि परीक्षा ली, बट इट इज एक्चुअली लुक्ड एट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोला आपने। एक्चुअली ये दिया गया है शास्त्र में, ऐसा दिया गया है कि जब सीता जी जा रही थी रावण के पास, तो सीता जी कभी भी को स्पर्श नहीं कर पाया रावण, क्योंकि सीता जी वैसे भी आपको पता है बचपन में ही सीता जी ने वो वाला धनुष उठा लिया था जो शिव जी का था, जो रावण नहीं उठा पाया था। हाँ। तो सीता जी में तो बहुत ज्यादा शक्ति थी रावण से। तो ये लीला थी जिसका अरेंजमेंट ऐसे हुआ था। और जब वो लक्ष्मण रेखा जब पार हुई, तो एक्चुअली लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता जी ने ही उसको पार किया, लेकिन छाया सीता उसमें से निकली। और सीता जी जो वो वहीं पे अग्निदेव के पास चले गए थे। तो अग्निदेव को सेवा का मौका मिला सीता जी का, और जो इतने टाइम तक वहां पे रही सीता जी, वो छाया सीता थी। और फिर उसके बाद
जब अग्नि परीक्षा बेसिकली यही थी कि जो ओरिजिनल सीता जी थी वो वापस आ रही थी। बिल्कुल ठीक बताया। ओके प्रभु ग्रेट। जी, और रामायण का मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था, वो अचानक से याद आ टाइम। गया। यस प्रभु जी, जैसे कि वो बताते हैं ना, नल और नील ने ना समुद्र पर पत्थर तैराए थे क्योंकि उन्हें वरदान मिला था। करेक्ट। पर हमने सुना है कि राम नाम से समुद्र पे पत्थर तैरने लगे, उन्होंने राम। तो फिर तो इसमें से सच्चाई क्या है? दोनों है, दोनों सच्चाई है कि नल और नील को भी ये वरदान मिला था कि उन्हें सेवा करनी है, तो उन्होंने हाँ। आर्किटेक्चर बनाया कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन वो पत्थर को कैसे तैराया जाए उसके लिए राम का नाम जो है वो लिया उन्होंने। तो फिर ये हुआ। जैसे अब आपको आप कहते हो कि कई कई कोई पर्टिकुलर जो है बिल्डिंग बनानी है, उसमें एक आर्किटेक्टर होता है और हाँ। एक बिल्डर होता है और एक मजदूर होते हैं काम करने वाले। अब हाँ। कोई कहेगा कि किसने बनाया ये, तो आप आर्किटेक्ट का नाम लेते हो कभी, फिर वो कहता है किसने बनाया ये, आप बिल्डर का लेते हो, फिर आप कहते हैं किसने, वो मजदूरों का लेते हो। तो फिर आप कहोगे इनमें से सही कौन है, फिर मतलब किसने बनाया है, वो अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान बनाने वाले तो भगवान ही होते हैं, लेकिन बाकी सबको ये सेवा का मौका मिलता है। ठीक है। ठीक है, यस। क्लियर हो? ओके, और किसी का कोई सवाल? ऐसे कई बार ये भी चीजें आती हैं, लोग कहते हैं अरे नहीं पता है ये शनि देव की जो है छाया पड़ी थी रावण के ऊपर, या शनि देव की वो हुई थी, या ये आसमान में जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस है उनकी वजह से ऐसे हुआ है, जो नवग्रह हैं। अरे ये सब एस्ट्रोलॉजिकल और नवग्रह ये इसीलिए इस तरीके के हुए क्योंकि भगवान को ऐसा करना था और उन लोगों को सेवा में लगाना था। सब अल्टीमेटली जो है भगवान की मर्जी होती है कि वो किसको किस तरीके से लगाए, लेकिन भगवान एक सिस्टम से चलते हैं, वो एक डिक्टेटर नहीं है भगवान, बल्कि भगवान बहुत करुणामयी भावना से सभी जीवों के लिए जो सबसे उत्तम चीज़ है वो उस तरफ लोगों को बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फोर्स नहीं करते भगवान। हम अगर अपनी स्व इच्छा से भगवान के शरण लेना चाहें तो भगवान वेलकम करते हैं, लेकिन अगर हम कहें नहीं हमें ऐसे गधा बन के ही रहना है या हमारे को गलत रास्ते पे ही रहना है, तो भगवान फोर्स नहीं करते। तो ये सारे जो देवी देवता हैं या बाकी लोग हैं या जो भगवान के भक्त हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनको मौका तो देते हैं भगवान, लेकिन फोर्स नहीं करते, उनके ऊपर छोड़ते हैं कि उनको करना है कि नहीं। रावण को भी मौका मिला था, उसको इतनी सारी पावर मिली, सब कुछ मिला, जब उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा तो उसको काफी कुछ मिला, लेकिन जब उसने अपनी इंद्रियों को एकदम अनकंट्रोल कर दिया कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, इनको भी तंग करना है उसको भी करना है, तो तब उसको ऐसी सजा दी जिसका एग्जाम्पल आज पता नहीं लाखों करोड़ों साल के बाद भी हम लोग सीख रहे हैं। तो क्लियर हुआ माता जी आपका सवाल? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई पॉइंट, सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन पॉइंट्स? ओके, तो हम चलते रहेंगे आगे। अव्यक्तो यम अचिन्त्यो यम अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयम् अविकार्यो यमुच्यते अविकार्यो अयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचति मर्हसि। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई स्त्री में? मैं पढ़ देता मैं हूँ। पढ़ देती। हाँ पढ़िए, प्लीज पढ़िए। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should grieve for the body. Purport. As described previously, the magnitude of the soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invisible. As far as the soul's existence is concerned, no one can establish his existence experimentally beyond the proof
of Shruti or Vedic wisdom, we have to accept this truth. Because there is no other source of understanding the existence of the soul. Although it is fact by perception, there are many things we have to accept solely or on grounds of superior authority. No one can deny the existence of his father based upon the authority of his mother. There is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. The soul is consciousness and conscious. The conscious, that also the statement of the Vedas, and we have to accept that unlike the body changes, there is no change in the soul. As eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite supreme soul. The supreme soul is infinite and the atomic soul is infinitesimal. Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can never become equal to the infinite soul or the supreme personality of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in different ways just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. Okay, thank you so much for reading, Sarita जी. Thank you. तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे बताया गया कि आत्मा जो है वो दिखती नहीं है हमें, इनविजिबल है, इनकंसीवेबल है. आत्मा को अपने से नहीं समझ सकते हम जाए रिसर्च करेंगे अपने आप देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समझ नहीं पाओगे आप. इम्यूटेबल, उसके अंदर विकार नहीं आता, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता. तो इस सब को समझ के आप दुखी मत हो अर्जुन. आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ सर्वनाश कर दोगे अपने प्रियजनों का, लेकिन आत्मा का कभी सर्वनाश नहीं होता. और शरीर जो है उसने तो जाना ही है. तो आप अपना धर्म से मत भटको, धर्म के साथ रहो आप. तो यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो इनविजिबल है. देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि आत्मा का डायमेंशंस कैसे दी गई हैं. केशाग्रह षड भागस्य, कि जो केश, जो हेयर्स होते हैं, उसका ऊपर की टिप अगर आप लो और टिप के आप 100 भाग करो और फिर उसमें से एक भाग लो और उसके फिर 100 भाग करो, मतलब 1/10,000, तो इतनी छोटी साइज हो जाता है. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि सोल को हम अपनी तरीके से नहीं देख सकते जैसे हम बाकी चीजों को देख रहे हैं. और इनकंसीवेबल सोल के बारे में ये जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, ये भगवान दे रहे हैं अभी, ये आप अपने से नहीं समझ सकते. इसके लिए आपको शास्त्रों की मदद लेनी है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, श्रुति वैदिक विजडम. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं अगर हम शास्त्र चक्षु के हिसाब से चलें. हमें कई बार कई चीजों को समझने के लिए अथॉरिटी चाहिए होती है. जैसे 3 प्रकार के माध्यम शास्त्रों में बताए गए हैं जिससे हमें ज्ञान मिल सकता है. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष मतलब आपने कुछ देखा, आपको पता लग गया, या आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके या किसी तरीके से डायरेक्टली अपने सेंसेस से परसीव किया, उसको आप समझ गए कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष है हमारे सामने. फिर दूसरा होता है अनुमान प्रमाण. जैसे आपने कहा कि भाई ये पेन है, ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये प्रत्यक्ष है, आपको पता है. लेकिन फिर आप थोड़ी देर के बाद आए और फिर वो पेन नहीं है, लेकिन बीच में आपने देखा कि यहाँ पे आपका भाई आया था या आपकी बहन आई थी. फिर आपने सोचा कि देखो मेरे भाई या बहन ने लिया होगा, तो आप उससे पूछते हो या आप अज्यूम करते हो ठीक है उसने लिया है. तो ये हो गया अनुमान प्रमाण. अनुमान प्रमाण मतलब थोड़ा आपने गैस करा, 2-4 चीजें आपने देखी कि हो रही हैं, उससे आपको आइडिया आ गया कि ये हुआ होगा.
जैसे कई बार तारों के बारे में साइंटिस्ट पढ़ते हैं, अलग अलग तारों को ऑब्जर्व करते हैं दूर से और देखते हैं कि अलग अलग स्टेज में हैं तारे, तो सोचते हैं कि अच्छा तारों की भी ना लाइफ साइकिल होगी कि ऐसे था पहले ये, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब ये प्रूव नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक तारे की लाइफ साइकिल में कई कई करोड़ों साल लग जाते हैं। तो कई चीजें हमारी एक्सपेरिमेंटल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड होती हैं, तो उसमें आप अनुमान प्रमाण के हिसाब से चलते हैं। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब कि आप सीखते हो उन लोगों से जिनको पहले से ही नॉलेज है, ज्ञान है। जैसे आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आप घर बैठ के नहीं कर सकते, आप जाते हो उनके पास, जाते हो वो बुक्स लेते हो जो अथॉरिटी है, ऐसे लोगों को लेते हो जिनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग से आप सीखते हो। वो बोलता है डॉक्टर की ये इस तरीके से सर्जरी करनी है, ऐसे ऐसे काट के, तो आप उसमें फिर उसको वर्ड लेते हो आप डॉक्टर का और उसको अप्लाई करते हो, और फिर आपको भी नॉलेज आ जाती है सर्जरी की, आप सर्जन बन जाते हो। उसी तरह से शास्त्रों का भी जो एक ज्ञान है ये एक साइंस है। जो आत्मा का ज्ञान है वो एक साइंस है। उसके लिए आपको श्रुति, वैदिक विजडम, शास्त्रों से सीखना पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे लोगों से आपको सीखना पड़ेगा, तो फिर आप समझ सकते। नहीं तो ये आप समझ नहीं सकते, ये इनकंसीवेबल रहेगी। इनकंसीवेबल मतलब कि जिसके बारे में आप कंसीव नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। और फिर इम्यूटेबल, फिर से आ गया, अविकार्य, अव्ययम, ये सब चीजें जो है आत्मा के बारे में बता रही कि आत्मा जो है वो अजर अमर, और वो उसी तरीके से रहती है, उसके अंदर विकार नहीं आता, उसके अंदर म्यूटेशंस नहीं आती, ये सब। तो यहां पे बताया गया है कि जिस तरीके से भगवान सुप्रीम लॉर्ड इनफाइनाइट है और सोल जो है इनफाइनाइटेसिमल है, उन दोनों के अंदर क्वालिटेटिवली सिमिलैरिटी है, लेकिन क्वांटिटेटिवली भगवान जो है उनकी अनलिमिटेड शक्तियां हैं और हमारी जो है बहुत सीमित है, हमारा आत्मा की और सोल की, लेकिन क्वालिटी दोनों की सेम है। दोनों सत चित आनंद है। सत मतलब इटर्नल है, चित मतलब पूरी तरह से इनके अंदर ज्ञान है, भगवान के अंदर भी, भगवान के जीव के अंदर भी। और ब्लिस, आनंद का एक्सपीरियंस करने की नेचर है, सच्चिद आनंद। और यहाँ पे कई चीजें हम देखते हैं कि रिपीट भी हुई हैं, पिछले श्लोकों में भी थी और फिर रिपीट हो रही है। तो ये रिपीट क्यों हो रही है? एम्फसाइज करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार टीचर क्लास में बार बार बताती है एक चीज़ कि हाँ भाई ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, तो समझ में आ जाता है बच्चों को, अच्छा, वरना हमारी भूलने की टेंडेंसी होती है। तो इसलिए शास्त्र भी कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले वाले श्लोकों में भी थी, अभी रिपीट हो गई। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक जो हमने पढ़ा है? ओके, तो नेक्स्ट चलेंगे 26वें श्लोक में। प्लीज रिपीट कीजिए। अथ चैनम नित्य जातम, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतं, नित्यं वा मन्यसे सततं तथापि त्वां महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। नैनं शोचितुमर्हसि। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई अवेलेबल है? I can read. हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. There is always a class of philosophers almost kin to the Buddhists who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. When Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed and they were known as the Lokayatikas and Vaibhavists.
Vaibhasikas. Such philosophers maintain that life symptoms take place at a certain mature condition of material combination. The modern material scientists and materialist philosophers also think similarly. According to them, the body is a combination of physical elements, and at a certain stage, the life symptom developed by interaction of the physical and chemical elements. The science of anthropology is based on this philosophy. Currently, many pseudo-religions now becoming fashionable in America are also adhering to the philosophy, as are the nihilistic, non-devotional Buddhist sects. Even if Arjun did not believe in the existence of the soul, as in the Vaibhasika philosophy, there should still have been no cause of lamentation. No one laments the loss of a certain bulk of chemicals and stops discharging his prescribed duty. On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to the Vaibhasika philosophy, the so-called soul or Atma vanishes along with the deterioration of the body. So in any case, whether Arjun accepted the Vedic conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. According to this theory, since there are many living entities generating out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. If there was no rebirth for the soul, Arjun had no reason to be afraid of being affected by sinful reactions due to his killing his grandfather and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjun as Mahabahu, mighty armed, because he at least did not accept the theory of Vaibhasikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjun belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow its principles. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much for reading. So here, कृष्णा अब इसमें क्या बोल रहे हैं? कृष्णा ने पहले आत्मा के बारे में बताने के बाद ये कहा, इसलिए आप अपना युद्ध करो, अपने धर्म निभाओ, अपनी ड्यूटीज करो। अब वो कह रहे हैं, अगर मान लो आप आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं भी जानते या नहीं भी मानते और आप कहते हो नहीं, आत्मा तो जो है कुछ नहीं है, शरीर जो है वही सब कुछ है और शरीर की उत्पत्ति हुई, आप ये सोचते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ है, जो भी शरीर है, अगर वो एक केमिकल्स ही है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि वो बॉर्न होता है और हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, तो भी आपको दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो फिर भी आनी है कि नहीं? और प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे कृष्णा ने इसलिए बताया क्योंकि उस टाइम पे भी कई लोग ऐसे थे जिनको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं था और वो मानना नहीं चाहते थे। और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे बुद्धिस्ट आजकल के ज़माने में, और कुछ फिलोसफर्स हैं आज के ज़माने में, यहाँ पे उनका नाम दिया गया है लोकायतिकास और वैभासिकास। ये लोगों को बहुत ज़्यादा आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होता और ना ही वो लेना चाहते हैं। और बुद्धिस्ट भी हम देखते हैं वो रीइंकारनेशन पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता उनको कि एक शरीर से दूसरे शरीर में गया क्या? फिर अगर आत्मा ही नहीं है तो क्या गया? और भगवान के बारे में बुद्धिस्ट जो है, अब बुद्धिस्ट में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरीके के बुद्धिस्ट हैं, जैन बुद्धिस्ट, तिबेटियन बुद्धिस्ट, बड़े सारी अलग अलग जब हिंदुस्तान से बुद्धिज़्म उत्पत्ति हुई और अलग अलग गया तो अलग अलग देशों और अलग अलग जगह वो अलग अलग लोगों के कस्टम्स के साथ ब्लेंड हो गया। तो बुद्धिस्ट में भी अलग अलग बिलीफ सिस्टम है थोड़ा, लेकिन मोटा मोटा ये है कि वो फोकस नहीं करते भगवान पे, जीव पे, लिविंग आत्मा, परमात्मा, इन सब पे नहीं है उनका फोकस। लेकिन निर्माण है, रीइंकारनेशन है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें उनके में हैं सिमिलरिटी जो धार्मिक उसमें होती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो भी ऐसे बिलीव करते हैं। जैसे मिलर और यूरे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1955 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ऐसा तापमान और सब कुछ ऐसे लैब में क्रिएट करा और कहा कि ये तब होता था धरती पे जब धरती
जब बनी थी उसके बाद, धरती के बनने के कुछ टाइम बाद ऐसा सब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट था और ऐसे सब केमिकल्स पास में आए और उन केमिकल्स से कुछ ऐसे एलिमेंट्स बन गए, ऐसे कंपाउंड्स बन गए जो ऑर्गेनिक केमिकल्स के जैसे हैं, प्रोटीन्स के जैसे हैं। तो अगर ये बन सकते हैं तो इसमें जीव मतलब लाइफ आ सकती है। ऐसे करके उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट करी। अभी इस चीज़ को 70 साल हो गए लेकिन अभी तक कभी लाइफ बना नहीं पाया कोई। और शास्त्र ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही आती है। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल्स से आप क्रिएट करो और कहो लो भाई ये अंडा तैयार हो गया, अब इसमें से चिकन आएगा, ऐसे नहीं होगा। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, आपको लिविंग एंटिटीज से ही चाहिए, केमिकल से नहीं आती। लेकिन अगर आप देखो साइंटिस्ट इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं लेकिन अगर मान लो प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं अर्जुन मान भी ले इस फिलॉसफी को, तो भी अगर केमिकल्स ही हैं सब कुछ, तो केमिकल्स के गिर जाने पर या केमिकल्स कहीं केमिकल का आपने कुछ बनाया और वो टूट गया, तो आप इतने ज़्यादा उससे परेशान नहीं होते, लेमेंट नहीं होते। आप कहते हो दोबारा बना लूंगा मैं, क्या है। अगर आपने कोई केमिकल से एक टॉय बनाया और टॉय टूट गया, तो आप ये नहीं कहोगे अरे यार आज मैं काम पे नहीं जा सकता यार, मेरा खिलौना टूट गया है, ओहो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो आपके पास है, जो आपके क्लोज है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर आप कहोगे अरे मैं तो काम पे बिल्कुल नहीं जा सकता, और आप सोचोगे भी नहीं काम के बारे में, क्योंकि अब आपका बहुत उसके साथ लगाव है। तो ये फर्क है, केमिकल्स जो है वो अलग है, शरीर जो है वो केमिकल्स नहीं है। शरीर हो सकता है लेकिन शरीर के साथ जो आत्मा है अंदर, जो जीव है, जो लिविंग एंटिटी है, उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे केमिकल्स के साथ। जैसे अगर मान लो एक कार का एक्सीडेंट होता है और उस कार में कुछ जब सबसे पहले रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं लोग, तो ये नहीं कहते कि कार को देखें, कार को सब कुछ करें। पहला उनका फोकस होता है कौन था इसमें लिविंग एंटिटी, कौन ड्राइवर था, कौन चला रहा था, उसको निकालने पहले जीव। क्यों? क्योंकि कार तो फिर भी केमिकल्स की बनी हुई है, वो तो रिपेयर हो सकती है, लेकिन लाइफ जो है अगर एक बार वो चली गई तो फिर वो नहीं आएगी। तो इसलिए अर्जुन को कृष्णा ही बोल रहे थे अगर आप सोचते हो कि ये केमिकल्स का ही बना हुआ है तो भी आपको लेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कृष्णा को पता था कि अर्जुन ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन वो बाकियों के लिए दे रहे थे ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कृष्णा को अर्जुन ने यहाँ पर बोला महाबाहो, ओ माइटी आर्म्ड। इसका मतलब ये है कि आप क्षत्रिय उसमें, और क्षत्रिय मतलब हाई प्रिंसिपल्स, आपको वैदिक कल्चर, वैदिक नॉलेज के बारे में ज्ञान है, इसलिए वैदिक कल्चर, वैदिक नॉलेज के बारे में ज्ञान है तो आपको आत्मा का भी ज्ञान होगा। तो इस तरीके से कृष्णा अर्जुन के साथ थोड़ा मजाक में बोल रहे थे महाभाव। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस पर्टिकुलर श्लोका में से हम हाईलाइट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? तो हमने 4 श्लोक पढ़े आज। तो इन 4 श्लोकों में से आप लोगों का कोई इन पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन, कंसर्न, कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और हम अगले वीकेंड फिर कंटिन्यू करेंगे। और मैंने जो जितने भी पुराने हमारे वीडियोस हैं वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग सब देख सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आप वीडियोस में भी, कमेंट में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो। आप ठीक, प्रभु जी आपने कहाँ पे डाले? क्योंकि इसी पे, यहीं पे डाले जहाँ पे हम लोग मिलते हैं, या फिर कहीं और अपलोड किए हैं? क्योंकि मैंने मुझे तो नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप, आप मेरे को इसमें एक बारी मेरे पर्सनल उसमें अपना नंबर डाल देंगे आप, मैं श्योर चैट में, आप मेरे को श्योर पर्सनली पक अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपके साथ आपको भी शेयर कर लूँगा। श्योर, जरूर करती हूँ मैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। और आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से सिटी से सरिता? मैं मैरीलैंड से। आप मेरीलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, ओके ग्रेट, हाँ। हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। यस कृष्णा। मैम।
प्रभु जी छोटी सी बात पूछनी है प्रभु जी। हाँ, पूछ। इसका अर्थ ये है कि हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है भक्ति के द्वारा, है ना? बिल्कुल परफेक्ट। ताकि हम मनुष्य जन्म से और नीचे ना गिर जाएं। एक्चुअली क्या है कि मनुष्य जन्म में तो हम पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। जो नीचे ना गिर जाए वो तो सबसे, जैसे होता है ना, वो तो एक साइड इफेक्ट है, वो तो एक बहुत मिनिमल थोड़ा सा इफेक्ट है। जैसे कई बार क्या होती है, कई दवाइयाँ हम देते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मेन उससे बेनिफिट होता है, लेकिन उसके कई बार साइड बेनिफिट्स भी बड़े सारे हो जाते हैं। तो ये एक साइड बेनिफिट है जो आपने बोला, मेन बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, इमेंस हैं। उसके बारे में मतलब भगवान से मिल जाना, यही। भगवान से मिल जाना मीन्स डिपेंड करता है हमारी भावना पे, हमारी क्या कॉन्शियसनेस है, किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इसमें भगवत गीता में हम और चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे डिटेल में। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेकेंड चैप्टर में इन पर्टिकुलर हमें ये पता चलना चाहिए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के अलग नीड्स हैं और आत्मा के अलग नीड्स हैं। जब हम दोनों को हार्मनी में डालेंगे तभी हम जो है संतुष्टि और आनंद एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर हम नहीं, दोनों चीज़ें हार्मनी में होंगी तो संतुष्टि और आनंद नहीं आएगा हमें, हम खोखले रहेंगे। हम हो रही हैं चीज़ें लेकिन उससे भी हमें बहुत ज़्यादा होगा नहीं। जैसे होता है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अमेरिका में खासकर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आती। लेकिन एक्चुअली गलती उनकी नहीं है, गलती है ये सोसाइटी में। स्पिरिचुअल लाइफ से इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम कि जब तक स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी तरीके से आएगी नहीं तब तक वो आनंद की अनुभूति हो नहीं पाएगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके।